جس شخصیت عظمیٰ کا نامی اس میں گرامی پیش کیا ہے، بندہ اپنی طرف سے جملہ اراکین کی طرف سے پرزور تائید کرتا ہے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ حضرات سامعین، اب ہم صدر محترم کی اجازت سے اجلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے خدا پاک کے کلام کی پاکیزہ آیات سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تلاوت کلام اللہ کا ہے، کیونکہ ہماری ہر اصلاحی، سیاستی، دینی، معاشرتی پروگرام میں قرآن کریم کی تلاوت زیب و زینت حاصل کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا معزز تحفہ ہے جو اہل زمین پر رب کی طرف سے عطا کیا گیا، اور ہر مخلوق اس کی عظمت کے اعتراف کرنا ہے۔ لہذا میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اسی ادارے کے طالب علم کو نام ہے ساحل حسین شیخ، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کرے۔ اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، سناؤ نغمہ قرآن کا، سناؤ نغمہ قرآن، کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، انعام لے جاؤ۔ پر کیف تلاوت فرمائی، ہر دل میں محبت پیدا ہوئی، اندازہ چھوٹا آپ کا تھا، ہر سمت عنایت پیدا ہوئی، نورانی فضا البیلی بہار پر لطف سما بننے لگا، صدقے میں کلام ربی کے ہر سمت ہدایت پیدا ہوئی۔ حضرات سامعین، ابھی ہم کلام اللہ کی تلاوت سے مستفیض ہو رہے تھے اور محفل میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی، رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا۔ اس پر نور ماحول کو تعدیر قائم رکھنے کے لیے ہم بھی باری تعالیٰ کا سہارا لیتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایسے حمد خواہوں کو جن کا کلام سننے کے بعد آپ مایوس ہونا چھوڑ دیں گے، جس کا عنوان ہے کبھی مایوس مت ہونا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ دوستو، نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔
तो लीजिए इसी मदरसे की 4 तालिबात को हमदे बाड़ी पढ़ने के लिए मैं दावत इस्तेद देता हूँ कि वो आए और हमदे बाड़ी सुनाए। नाम है जकिया पांडोर, आलिया मलिक, आमिरा रावत, जोया पांडोर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में, तरह तुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं थकता, मुसाफिर टूट जाते हैं, मगर मल्ला नहीं थकता, सफर तय हो के रहता है, सफर तय हो के रहता है। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस मत होना। खुदा वाकिफ है नाज़िर भी, खुदा ज़ाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी। मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, कभी मायूस
تقسیم کر لے حضرات سامعین، مدرسہ قائم الاسلام مانگرول کا سالانہ جو پروگرام ہے اس کے لیے جو رقم موصول ہوئی ہے میں اس کی یادی جو ہے ایک مرتبہ پڑھ کے سنا۔ 3000 روپے جناب ابراہیم بھائی پانڈور ماسٹر صاحب یو کے والوں کی جانب سے موصول ہوئے۔ 3000 روپے جناب محبوب بھائی یوسف پٹیل صاحب کینیڈا والوں کی جانب سے۔ 3000 جناب ساجد بھائی کوٹر صاحب کی طرف سے۔ 2800 روپے جناب اسماعیل بھائی راجہ صاحب کینیڈا والوں کی طرف سے موصول ہوئے۔ 1500 جناب اسماعیل بھائی آدم جی وکیل صاحب کی طرف سے ملے ہیں۔ 1200 روپے ایک مسلم بہن کی طرف سے موصول ہوئے۔ 500 روپے جناب محمد بھائی موسیٰ جی پانڈور صاحب کی طرف سے ملے ہیں۔ کل ٹوٹل 15000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ پروگرام میں شریک ہونے والے ہر بچے کو 100 روپے مجموعی انعام دیا گیا ہے۔ 1000 روپے، سوری بھول ہو گئی، 1000 روپیہ مجموعی انعام دیا گیا ہے۔ جناب ساجد بھائی کوٹر کی طرف سے اول نمبر پر پاس ہونے والے بچوں کو 1000 روپیہ انعام برتن کے طور پر دیا گیا ہے، یعنی برتن کی شکل میں ملے ہیں، اور انہی کی طرف سے پورے عالم پورے سال میں ایک بھی غیر حاضری نہ رہنے والے طالبات اور طالبات کو، اس میں کل 18 بچے ہیں جن کی فل حاضری ہے، تو اس کو ان تمام کو 500 روپے انعام دیا گیا ہے۔ جناب منور بھائی اکبر پانڈور صاحب کی طرف سے دوسرے نمبر پر پاس ہونے والے بچوں کو 700 روپیہ انعام برتن کی شکل میں دیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے ہر استاد کو 500 روپے ہدیے کے طور پر دیا گیا ہے۔ کل 16,000 روپے ان کی طرف سے ملے ہیں۔ جناب اسماعیل بھائی راجہ کی طرف سے اول نمبر پر پاس ہونے والے ہر بچے کو 300 روپے، دوسرے نمبر پر پاس ہونے والے ہر بچے کو 200 روپے، اور ہر استاد کو اور ہر تینوں مسجد کے تینوں مؤذنین صاحب کو 500 روپے انعام میں ملے ہیں۔ ان کی طرف سے کل 17,800 روپے ملے ہیں۔ جناب عرفان بھائی محمد پٹیل کی طرف سے 500 روپے، جناب صدیق بھائی مہمان کی طرف سے 500 روپے، جناب اسماعیل بھائی پانڈور گھوڑا کی طرف سے 250 روپے، جناب اکبر بھائی عمر امریکہ والوں کی طرف سے 250 روپے، راوت تست کی طرف سے 250 روپے ہر استاد کو ہدیے کے طور پر انعام میں ملے ہیں۔ اس سال جن طلبہ اور طالبات نے ناظرہ قرآن شریف ختم کیا ہے ان کو ان کے استاد کی طرف سے ایک قرآن شریف ہدیے میں دیا گیا ہے۔ جلسے کے پروگرام کے لیے 500 روپے اسماعیل بھائی راوت ٹاروالا کی طرف سے بھی موصول ہوئے ہیں۔ فجزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محسنین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کی جان مال عمر میں رزق میں ایمان میں اعمال صالحہ میں کھیتی میں باڑی میں برکت در برکت عطا فرمائے۔ اور مزید یہ خط ملا ہے جو آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ السلام علیکم، موٹا میاں مانگرول ویلفیئر سوسائٹی آف یوکے نا سیکریٹری جناب یوسف بھائی قاسم مہمان صاحب سادے ٹھہل ٹیلی فونک بات چیت مجب گام میں مدرسہ میں ایوا آپ کا عالمہ سیوک અને ગામની ત્રણેય મસ્જિદના મોઝરીન સાહેબોને મોટા મિયા માંગરોળ વેલફેર સોસાયટી ઓફ યુકે તરફથી રમઝાન માસમાં હડિયા પેટે લીલા ફંડમાંથી દરેકને ₹5000 આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવે છે। આ રકમ આવતીકાલે જનાબ સલીમભાઈ પાંડોર સાહેબ પાસેથી મેળવી લેવા જણાવાયું છે। જઝાકલ્લાહ, ખૂબ ખૂબ આભાર। અલ્લાહ પાક મોટા મિયા માંગરોળ વેલફેર સોસાયટી ઓફ યુકેના તમામ કરતા ધરતાઓની ઉંમર લાંબી કરે, તંદુરસ્તી બક્ષે અને અમને જે મદદ કરી છે તેનો બદલ બંને જહાનમાં મળે એવી અમે દુઆ ગુજારીએ છીએ। ફજઝાકુમુલ્લાહ તાઆલા અસલ જઝા। हजरात सामीन, अब हम मैदान तकरीर में कदम रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, गुलशने दहर में अगर जुए में सकून न हो
गुलशन डहर में अगर जुए में सकून न हो, फूल न हो, कली न हो, सब्जा न हो, चमन न हो। हजरात, अब तक तिलावत कलामुल्लाह से और हम लोग पाक का दौर बड़े आबो टाप से साथ चल रहा था। चूंकि नाद नबी और हमदे बाड़ी में बड़ा गहरा ताल्लुक है और रब्त है, इसी तरह मुकर्रिर और साए में जो रब्त और ताल्लुक है वो भी बेनज़ीर और लाजवाब है। क्योंकि जहाँ नाद नबी की जहाँ नाद की हैसियत एक गुलजार की है, तो वहीं तकरीर की हैसियत मुर्गजार की है। नाद जो है एक दरिया है तो तकरीर उसकी मौज है, नाद कहकसा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट है, नाद चमन है तो तकरीर उसका फूल है, नाद अगर फूल है तो तकरीर उसकी पट्टियां है, नाद अगर पट्टियां है तो तकरीर उस पर निकलने वाली शबनम, और ऐसी संगम पर चमन का हुस्न निकलता और बरकरार रहता है। लिहाजा इस मुस्तहकम रिश्ते को बरकरार रखते हुए तकरीर और खिताबत का इस माहौल में लिए चलता हूँ, और मैं इसी मदरसा के तालिबात को मदू कर रहा हूँ जिसका उन्वान है मौत। मौत आनी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किस लिए आए थे और हम क्या लेकर चले, किस लिए आए थे और हम क्या लेकर चले, और बाग दुनिया में हमसा कोई बदनसीब आए और खाली दामन ले चले। तो लीजिए, सुनाने जा रही है मरियम हाफिज जुनैद जसा, स्टेज पर आए और तकरीर सुनाए। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तअलमून। जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो वो किसी तरह न टलेगा, काश तुम भी जान लो। बुजुर्गान मोहतरम व सदरे जलसा, जमाने की नई रंगी कुछ अजीब कुदरत का तमाशा दिखा रही है। एक ही शहर है और एक ही जगह है, कहीं गुलाब के फूल तो कहीं बबूल के दरख्त, कहीं शादी का वलीमा तो कहीं मैयत के फूल। कोई निहायत शौक में नई शादी की दुल्हन को पालकी में ले बजा बजा अपने घर चला जाता है, तो कोई अपना नौजवान खूबसूरत फर्जंद का जनाजा ले जाता है। इत्तिफाकन बीच बाजार में मैयत की बारात और शादी की बारात का मेल हुआ। अल्लाहु अकबर। एक तरफ खुशी और एक तरफ गमी, एक तरफ खाना आबादी और एक तरफ खाना बर्बादी। एक तरफ दुल्हन को पालकी में ले बजा बजा अपने घर चला जाता है, तो दूसरी तरफ जनाजे का पहिया छोटे छोटे भाई और रिश्तेदार जनाजे का पहिया नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े हुए रोए जाते हैं। किसी को इतना सुहाग लगाया जाता है तो किसी के गुस्सा के पानी में बेड़ी का पट्टा डाला हुआ पानी से गुस्सा दिया जाता है। कोई अपने फजंद की खुशी में अकीके के लिए बकरा ले चलाता है, तो कोई दूसरा अपने कलेजे के टुकड़े को कब्र की खाक पलीटा कर पड़ा रोता है। पहला अकीका वाला बकरियों का गोश्त रिश्तेदार और कुंबे वालों को खिलाएगा, तो ये दूसरा अपने कलेजे के टुकड़े को कब्र की खाक पलीटा कर उसके गोरे गोरे पिंडे का गोश्त कब्र की कीड़ों को खिलाएगा। मुख्तसरन मौत किसी को नहीं छोड़ती। चाहे नूह अलैहिस्सलाम जैसा तवील उम्र, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा तौहीद परस्त, दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा खुश इन्हान, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा हाकिम, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबरू, अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा साबिर, याकूब अलैहिस्सलाम जैसा कबीला परवर, लुकमान अलैहिस्सलाम जैसा हकीम, ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा नेकोकार, रुस्तम जैसा सहजोर, सिकंदर जैसा फातेह, नौशहरवा जैसा मुंसिफ, मोहम्मद शाह जैसा अय्यास, फिरौन जैसा मुतकब्बिर, नमरूद जैसा बददिमाग, अबू जहल जैसा जाहिल, यजीद जैसा शकी, जंगीर जैसा कातिल क्यों न हो, मौत आनी ही है और आकर ही रहेगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले तो हम अपने दुनियावी मशागिल की वजह से इस पर सोचते भी नहीं और गौर फिक्र भी नहीं करते। हम सोचे किस तरह उनके बदन के टुकड़े टुकड़े अलग हो गए होंगे, किसी तरह वो मजलिसों में बैठकर यह कहा लगाते थे और आज दांत गिर पड़े होंगे। दोस्तों, सोचो किस साये ने क्या खूब कहा है, किस लिए आए थे हम और क्या लेकर चले। इस बाग़ दुनिया में हमसे कोई बेनसीब आए और खाली दामन ले चले।
इंसान को मौत की यानी आखिरत की पहले से तैयारी करना चाहिए। जैसे इंसान को दुनिया में सफर करना हो तो गाड़ी आने से पहले सामान और टिकट वगैरह पैक करके तैयार हो जाता है, और अगर गाड़ी चल जाने के बाद जो गाड़ी चली गई उसकी फिक्र करने में बेवकूफी है। लिहाजा जाने वाली तो चली गई, आने वाली की फिक्र करना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अद-दुनिया मुदबिरतुन वल आखिरतु मुक़बिलतुन, दुनिया गुजरने वाली है और आखिरत आने वाली है, लिहाजा आने वाली की फिक्र करो, गुजरने वाली तो चली गई, वरना पछतावे के अलावा और हसद के अलावा कुछ नहीं होगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मरता है तो उसके साथ 3 चीजें जाती है, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। एक चीज अजीज व अकारीब, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, गांव वाले, दूसरी चीज उनका माल और तीसरी चीज उनके अमल। अब इन 3 चीजों में से साथ जाने वाली जो चीज है वो अमल है। रिश्तेदार वगैरह कब्र तक, साजा सामान कब्र तक। दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ अमल ऐसा है, कफन में भी साथ, गुस्ल के तख्ते पर भी साथ, जनाजे में भी साथ और कफन में भी साथ ही जाएगा। यानी हमारे अमल अच्छे हो या बुरे हो, हमारे साथ ही रहते हैं। अगर हमारे अमल अच्छे होंगे तो कब्र हमारे लिए वेटिंग रूम बन जाएगी, हम तरह तरह के इनाम और इकराम पाएंगे, और अगर हमारे अमल बुरे होंगे तो कब्र हमारे लिए जहन्नम का लौका बन जाएगी, हमको तरह तरह की दुख और तकलीफ उठानी पड़ेगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। हज़रत आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबकी मौत से पहले आखिरत की तैयारी करने की तौफीक और हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह की तरफ रुजू होने की और अमल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह मस्जिद फजीद। बेटा इनाम अभी पैसे उनके वालिद साहब की तरफ से 500 रुपये मजीद इनाम लिया जाता है इस बच्ची को। हज़रात सामीन, जितने पैगंबर और रसूल दुनिया के अंदर मबूस हुए, हर एक कौम की ज़बान में वाज और तबलीग के फरीज़े को अंजाम देने वाला रहा है। मुकालिमा भी कौम की ज़बान ही में होता है। कौम के मुहावरात और अहवाल को मुकालमा में पेश किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा मौसर होता है। तो अपनी बज़्म में इस पूर्ण असर अंगेज फन को पेश करने के लिए बज़्म के 2 अफराद को दावत इस्तेद देता हूँ कि वो आए और मुकालिमा पेश करें। सुहेल मोहम्मद बूढ़ा, आसियान पठान। इस शेर के साथ मैं मदऊ करता हूँ। तर्जुमा बनकर करो तुम तर्जुमानी कौम की, तर्जुमा बनकर करो तुम तर्जुमानी कौम की, तुम हो वारिस तुम पे है निगहबानी कौम की। आओ दिलकश तर्ज पर मसला का हल कर डालो पेश, आओ दिलकश तर्ज पर मसले का हल कर डालो पेश, ताकि दुनिया में करो तुम पासवानी कौम की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये न पूछ सका कि आप तालीम तो हासिल कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है। मैं मदरसा कायमुल इस्लाम मगरुल में दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह यहाँ से तालीम हासिल कर फिर दारुल में आलिम दीन बनकर दिन की खिदमत करने का इरादा है। दिन की खिदमत के बदले में आपको क्या मिलेगा? दिन की खिदमत का कोई बदला नहीं हो सकता और न कोई चीज उसके बदले हो सकती है। तो फिर आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? जिंदगी का मालिक अल्लाह है, उसने दी है और वही कफील है। आप तो अजीब बात कर रहे हैं। आखिर ये दुनिया इसमें बिना पैसे की जिंदगी गुजारना मुश्किल है। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है? आप किसी कॉलेज में दाखिला लेते और डिग्री हासिल करते, जिससे आपको किसी ऊंची पोस्ट पर नौकरी मिलती। आपके घर वाले गरीब है, उनको भी इत्मीनान का सांस लेना नसीब होता। आपकी बातों से लगता है किसी मौलाना ने आपको बहका कर दीनी खिदमत का नाम लेकर ये रास्ता दिखाया है। खुदा के वास्ते किसी की बातों में ना हो। हमने ऐसे दीनी खिदमत वालों को इंतहाई गुर्बत और परेशानी के शिकार देखा है। इस तालीम से कुछ फायदा नहीं, वक्त भी बर्बाद होता है और बाद में कौम भी कुछ कदर नहीं करती। रात दिन काम लेकर बेचारा मौलाना को 4-5 हजार पगार देती है, जिसकी वजह से बेचारा हर वक्त परेशान रहते हैं। मैं आपको अपना समझ का मशवरा देता हूँ कि अंग्रेजी और असली तालीम हासिल करो, ताकि मास्टर, डॉक्टर, वकील,
इंजीनियर वगैरह कुछ न कुछ बन जाओगे और चैन सुकून की जिंदगी गुजारोगे, दूसरे लोग और बच्चे उस काम को करेंगे, तुम किस वादी खानदान में चले गए। अरे भाई, मैं आपके ये ख्यालात से बड़ा सदमा महसूस कर रहा हूँ। आप एक मुसलमान होकर एक इस्लामी तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को ऐसा मशवरा दे रहे हो, आपकी नजर तनख्वाही वाली हो। याद रखिए, जिस तरह इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए रुपये, पैसे और दूसरी चीजों की जरूरत है, वैसे ही उनको दिन की भी जरूरत है। दिन के बगैर इंसान इंसान नहीं है, हैवान है। जितनी अच्छाइयाँ और अखलाकी कुव्वत है, वो सब जिंदगी से पैदा होती है। जब ये बात है तो समाज में दिन को बताने वाले भी जरूरत है। जिस तरह कौम को मास्टर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर की जरूरत है, वैसे ही आलिम दीन, मुफ्ती, मुअल्लिम, इमाम, वाइस, मुस्लिम और मुसल्ली की भी जरूरत है। रह गया गरीबी का मसला, तो मैं नहीं समझता कि कोई आलिम दीन भूखा रहता हो या भूखा सोता हो। मुसलमान का अकीदा है अल्लाह सबको रोटी देने वाला है। आज भी मुसलमान उलमा की खिदमत करती है। भाई, आपकी सब बात सर आंखों पर है, लेकिन सवाल ये है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी हुनर सीखना चाहिए ताकि तकलीफ और परेशानी के सामना ना हो। जी हाँ, अगर आदमी ये सोचे कि मैं क्यों ये तकलीफ उठाऊं, फिर इनका काम कौन करेगा? हजारों बच्चे दुनियावी तालीम में लगे हैं, उनमें से आप किसी को दिन की तालीम की रगबत नहीं दिलाते, मगर कुछ बच्चे दिन की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको आप बहका रहे हो। जो भी काम हो ये आपके नजदीक काम ले, लेकिन अजान देना, इमामत करना, बयान करना, मसले बताना, ये सब आपके नजदीक काम नहीं है। कुछ तो सोचो, क्या मुसलमान सिर्फ खाना पीना और कमाने के लिए पैदा हुआ है? आप तो बड़े मुश्किल मिजाज साहिब अदब नजर आते हो। दुआ फरमाइए, अल्लाह हमको दिन का ऐसा जज्बा अता फरमाए। मैंने आपकी साथ में गुस्ताखी की है, उसमें मैं माफी चाहता हूँ। गुस्ताखी नहीं, आज के मुसलमान नौजवान इसी अंदाज पर सोचे के आज ये अच्छा हुआ ताकि आपने इशारा कर दिया, बात सामने आ गई। माशाअल्लाह, आज आप बड़े तैयार होकर आए हैं। कहाँ का प्रोग्राम है? आज हमारे मदरसा तालिमुल इस्लाम का सालाना जलसा है, जिसमें बड़े आलिम दीन आने वाले हैं। उनकी अच्छी और नूरानी बातों से दिन की ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिलेगी। आप फ्री हो तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलता हूँ तुम्हारे साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। निगाह ले साहिब, एक एक कवर ले लो। हज़रात सामीन, मुकालमा सुनने के बाद फिर हम तकरीर के मैदान में लौटते हैं। इसी मदरसे की एक तालिबात की ज़बानी सुनाने जा रही है, जिसका मौजू है इस्लाम में औरत का क्या मकाम है। दोस्तों, औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है, जब बीवी बनती है तो अपने शौहर का आधा दिन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत उसके कदमों के तले रख दी जाती है। तो लीजिए, इस मौजू को उजागर करने के लिए एक तालिबात को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी नाफिस ज़मीर को तकरीरी शक्ल में पेश करें। वो है असरा मंजूर भट्टी वाला। बेटा जल्दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबah। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दूर दराज से आने वाले मेहमान इज़्ज़त, मैं आज आप हज़रात के सामने इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है, इस उन्वान पर चंद बातें अर्ज करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएंगे, और अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। मोहतरम हज़रात, बिलाद अरब में इस्लाम से पहले औरतों के हुकूक इस कदर पामाल कर दिए थे कि लोग अपने घर में लड़की का पैदा होना बर्दाश्त नहीं करते थे। मासूम बच्चे को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। औरतों के हुकूक इस हद तक छीन लिए गए थे कि
आदमी इंतकाल कर जाता था तो उसकी जायदाद उनके बड़े बेटे की विरासत में आ जाती थी। उनकी बीवियां भी उनके बड़े बेटे की विरासत में आ जाती थी। बीवियों को पाँव की जूतियां समझा जाता था। औरतों की जायज बातों को मानना भी मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता था। ऐसे ही नाजुक वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और वाज़े कर दिया, ए लोगों, औरत अगर बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है, अगर बहन है तो तुम्हारी नामोस है, अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। और ये भी फरमाया कि अल्लाह जिसे दो बेटियां दे वो शख्स उन दोनों बेटियां की अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छी तालीम दिलावे, उनका फर्ज अदा करे तो वो शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा जैसे हाथ की उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है। बेटी की पैदाइश पर जन्नत के दरवाजे खुलने की बशरत दी गई है। शरीयत का हुक्म है कि अगर घर में एक बेटी पैदा हुई तो अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोल दिया, और अगर दो बेटियां पैदा हुई तो बाप के लिए रहमत बन गई। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जब कोई कुंवारी लड़की माँ बाप के घर रहती थी, फौत हो गई, तो कयामत की अल्लाह ताला उसे शहीदों की कतार में खड़ा कर देंगे। इसलिए कि कुंवारी थी, माँ बाप के घर रहती थी, उसने अपनी इज्जत व इफ़्फ़त की हिफाजत की थी, उसने अभी खालिद का घर नहीं देखा था, वो ऐशारात नहीं देखे थे जो खालिद के साथ औरतों को नसीब होते हैं। बेटी इससे महरूम रही, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी फरमाई कि उसे शहीद आखिरत का दर्जा दे दिया। दुनिया में इसे शहीद नहीं कहेंगे, लेकिन कल कयामत की अल्लाह ताला उसे शहीदों की कतार में खड़ा कर देंगे। और अगर किसी लड़की की शादी हो गई, वो लड़की अपने खाविंद की फरमाबरदारी करती है, उसके साथ अल्लाह ताला की इबादत भी करती है, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत को एक नेकी देते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत को एक नेकी देते हैं, एक गुनाह माफ करते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलंद करते हैं। इसलिए कि उस पर दो खिदमत जरूरी हो गई, एक खाविंद की और एक अल्लाह ताला की इबादत। मोहतरम हज़रात, औरत अगर घर के काम काज करती है तो काम काज करने पर भी सवाब मिलता है। एक हदीस का मफहूम है कि जो औरत अपने खाविंद के घर में कोई चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी, उसे तरतीब से रख दिया, तो अल्लाह ताला उस औरत को एक नेकी देते हैं, एक गुनाह माफ करते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलंद करते हैं। वो कौन सी औरत है जिसकी शादी हो गई हो, माँ बाप को मिलने न आए, सभी बेटियां आती है, मगर दिन में यही हो कि मेरे इस अमल से अल्लाह राजी हो, तो अल्लाह ताला ऐसी औरत को हर कदम पर 100 नेकियां अता फरमाते हैं, 100 गुनाह माफ करते हैं, 100 दर्जे बुलंद करते हैं। एक हदीस पाक में आता है, अगर ये औरत माँ बाप के पास आई, उनके चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डाली, तो अल्लाह ताला उस औरत को हर नजर पर एक हज या उम्र का सवाब अता फरमाते हैं। मुस्लिम मुआशरे में औरत घर की मलिका है, इसलिए घर के माहौल का दारोमदार और आपकी दीनदारी को मौकूफ है। औरत अगर नेक होगी तो बच्चों को भी दीनी रंग देगी। बस मुसलमान लड़कियों और औरतों की दीनी तालीम और अखलाकी तरबियत की ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारे आने वाली नस्लें बाकी गोद से ही उम्दा अखलाकी तरबियत पाए। आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम बहनों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हज़रात सामीन, अब आप हज़रात के सामने एक हदीस की वजाहत करने के लिए एक छोटा सा मासूम बच्चा आ रहा है। दोस्तों, क़यामत का दिन बड़ा ही दर्दनाक होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आफ़ताब सवा निज़े पर होगा, सब लोग हैरान और परेशानी की हालत में होंगे और सब लोग नफ्सी नफ्सी पुकारते होंगे। लेकिन उस दिन 7 किस्म के लोग अर्श इलाही के साए में होंगे।
عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. تو اسی مضمون کو ادا کرنے جا رہا ہے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے. اس کے لیے میں دعوت استعداد دیتا ہوں ساجد سہیل پانڈور کو، وہ آئے اور اپنے مضمون کو واضح کریں. ساجد سہیل بیٹا جلدی آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجب الاحترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ سماعت فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل بادشاہ. نمبر 2 وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. نمبر 4 وہ دو شخص جن میں اللہ کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی. 5واں وہ شخص جو جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا بندر مانے ہے. 6واں وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. 7واں وہ شخص جو اللہ کے ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے. ایک اور حدیث میں آیا ہے جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہو اس پر بھی حرام ہے. جو آنکھ ناجائز چیز مثلاً نامرحم وغیرہ پر پڑنے سے رک گئی ہو اس پر بھی حرام ہے. جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اللہ مسجد فضید بیٹا انعام لے. اس لڑکے کو یاسمین محبوب عمر کی طرف سے 500 روپے دیے جاتے ہیں اور وزیر انعام ظہیرہ محبوب عمر کی طرف سے 200 روپے اور ان کے علاوہ دوسرا ان کا مدرسے کا انعام. ماشاء اللہ. حضرات سامعین، اب آپ حضرات کے سامنے 3 طالبات مکالمہ پیش کرنے جا رہی ہیں جس کا عنوان ہے اتباع سنت. دوستو، آج ہم نے غیروں کے طور و طریقے کو اپنا لیے اور اسلام کی تعلیم سے غافل ہو گئے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، غضب ہے نام لیتے ہیں یہود و نصارہ کی عداوت کا. غضب ہے نام لیتے ہیں یہود و نصارہ کی عداوت کا، مگر نصرانیت اور مغربیت دل سے ہے پیاری. کیوں؟ لباس ان کا، معاش ان کا، زبان ان کی، تراس ان کی، وہی طرز معیشت ہے، وہی طرز سکون جاری. تو لیجیے ان 3 طالبات کو مکالمہ پیش کرنے کے لیے دعوت استعداد دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں. نام ہے سمیہ اسلم مہمان، ارتقا پٹھان، مبینہ حافظ امتیاز مٹھانی. جلدی آئے بیٹا. کم ہے، بارش کا موسم ہے. ہائی ٹیکا، گڈ مارننگ. کیسے ہو آپ؟ ہیلو سمیہ، گڈ مارننگ. میں اچھی ہوں. آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں. رکیے، دیکھو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملے تو آپس میں سلام کرے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ्सु सलाम बैनकुम, यानी आपस में सलाम को फैलाओ। इसलिए हाय हेलो और गुड मॉर्निंग को छोड़कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना चाहिए और सलाम करने से 30 नेकियां मिलती है। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ठीक, तो अब कर लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बताइए टीका बहन, आप इस वेकेशन में कहाँ गई थी? हम तो सापुतारा गए थे। वाह, सापुतारा तो बहुत अच्छी जगह है, हम भी जरूर जाएंगे। जब कोई चीज अच्छी लगे तो वाव नहीं, माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह कहना चाहिए। और जब भी आइंदा किसी काम का इरादा करे तो इंशाअल्लाह जरूर कहना चाहिए। ये कुरानी तालीम है। माशाअल्लाह, कुरान हमें कितनी प्यारी तालीम देता है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि सापुतारा माशाअल्लाह बहुत अच्छी जगह है, वहाँ की हसीन मंजर और खूबसूरत पहाड़ियाँ, सुभान अल्लाह। हम भी इंशाअल्लाह सापुतारा जाएंगे। अरे बहन, सापुतारा की जगह यूँ कहिए कि इंशाअल्लाह एक दिन हम भी मक्का और मदीना जाएंगे। सापुतारा में क्या अल्लाह का कोई वादा है कि मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा या उसको जन्नत में दाखिल करूंगा? वहाँ पैसे की फुजूल खर्ची के अलावा कुछ भी फायदा नहीं है। देखो बहनों, यूँ कहो कि अल्लाह ने मौका दिया तो हम भी मक्का और मदीना जाएंगे और हज उम्रा करेंगे। देखो, उसमें सवाब भी है और गुनाह भी माफ होते हैं। मजीद बड़ा ये है कि तफरीह की तफरीह भी हो जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह जन्नत में दाखिला भी अता फरमाएंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को हज और उम्रा नसीब फरमाए, आमीन। और हाँ, सापुतारा एक ऊंची जगह है। एक हदीस में है जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि जब तुम किसी ऊंची जगह पे चढ़ो तो अल्लाहु अकबर कहो और जब नीची जगह उतरो तो सुभान अल्लाह कहो। इसी तरह सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त भी हमें सुन्नत अपनानी चाहिए। ये लीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू, वेलकम। नहीं मेरी बहनों, हदीस में है जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि जब तुमको कोई गिफ्ट दे तो तुम उनको जज़ाकुमुल्लाह कहो और थैंक यू नहीं कहना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह इत्तिका। और हाँ, सापुतारा में एक जगह पर मेरे पैसे गुम हो गए थे, बहुत तलाश की लेकिन नहीं मिले। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब कोई बुरी खबर सुने तो ओ माय गॉड नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। ये तालीम भी हमें कुरान ही देता है। माशाअल्लाह बहन, आप आलिमा हो के इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखती हो? नहीं, मैं आलिमा नहीं हूँ। हमारे मोहल्ले में जो मदरसा है, मदरसा कायमुल इस्लाम में जाती हूँ। वहाँ मेरे उस्ताद मुझे ये सब बातें सिखाते हैं। माशाअल्लाह, मैं भी अपने अब्बा से कहकर मदरसा में जल्दी दाखिल हो जाऊंगी। ठीक है बहनों, अब हम चलते हैं। गुड बाय, नाइस टू मीट यू। ओके, गुड बाय। आखिरी एक बात सुनकर जाइए बहनों, जब मुसलमान एक दूसरे से रुखसत होता है तो गुड बाय नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और फी अमानिल्लाह कहकर रुखसत होना चाहिए। देखो, हमारी जबान अरबी है, जन्नत की बोली अरबी है, कुरान शरीफ की बोली भी अरबी है। अल्लाह का हुक्म है जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से सलाम करें। ये सलाम एक दुआ है जो हमें सुबह से शाम तक सलामती देती है, हर चीज की सलामती। उसके मुकाबिल अंग्रेजी में तो हर वक्त अलग अलग अल्फाज कहना पड़ता है, जैसे सुबह में गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम में गुड इवनिंग और रात में गुड नाइट कहना पड़ता है। और जब इस्लाम में आदमी सुबह में सलाम करता है और सामने वाला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है तो गोया दोनों तरफ से सलामती और हिफाजत की दुआ मिल गई, जैसे तेरी सलामती, बीवी बच्चों की, घर वालों की, मालो दौलत की, हर चीज की सलामती। आज हमने गैरों के तरीके अपना लिए हैं और अपने तरीके छोड़ दिए हैं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गजब है नाम लेते हैं यहूद और नशारा की अदावत का, मगर नशरानियत और मगरिबियत दिल से है प्यारी क्यों? लिबास उनका, जबान उनकी, माश उनकी, वही तर्ज मईशत और वही तर्ज सुकून जारी। जैसा उनका लिबास वैसा हमारा लिबास, जैसे उनकी जबान वैसे ही आज हम हाय हेलो और गुड मॉर्निंग करना लग गए हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें गैरों के तौरों तरीके अपनाने लगे, उससे हिफाजत फरमा, नेक तौफीक अता फरमा और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बहन, आप अभी कहाँ जा रही हो? आज हमारे मदरसा कायमुल इस्लाम का सालाना जलसा है, बहुत बड़े आलिम आने वाले हैं। आप भी साथ चले, दीन की बात सीखने को मिलेगी। हाँ, जरूर साथ चलेंगे, क्यों नहीं। ठीक है बहनों, अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।
ये फैसला माशाअल्लाह, अल्लाह हमें इस्लाम के तौर तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। हज़रात सामीन, बड़ी महरूमी और नामुरादी होगी अगर उस आखिरी मरहले पर बारगाह एज़दी में वजीफ़ा हम्दो सना पेश करने की सआदत हासिल न कर ली जाए। उस ज़ात आली के अलावा और कौन होगा जो हम्दो सना का इस्तिकाक रखता हो, जो आलम कौनो मका का तना खालिक और मालिक है, जिसकी मसीहत और मर्जी के बगैर डाली से एक खुश्क पत्ता भी गिर नहीं सकता। वो है तो ज़मान और मकान की हुदूद और क़यूद से बाहर, वो है तो ज़मान और मकान की हुदूद और क़यूद से बाहर और दूर, मगर अपने हर मखलूक की सह रग से भी ज्यादा करीब है। ऐसा कादिर और तवाना के अशिया को अदम से वजूद में लाने के लिए उसे असबाब की जरूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ तो कुन फयकुन की जलवागिरी में जैसे उसकी जात लामादूद है वैसे ही उनकी सिफात लामादूद है। कौन उसकी हम्दो सना बयान कर सकता है और कैसे कर सकता है? अलगर्ज मजमून को मुख्तसर करते हुए इसी मदरसे के एक दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म को दावत इस्तेक देता हूँ कि वो आए माइक पर आए और सीरीन आवाज में हमदे बारी सुनाए। नाम है हाफिज मोहम्मद हाफिज इम्तियाज बीतानी, जल्दी आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीउन बसीरुन अलीमुन खबीर करीमुन रहीमुन अज़ीमुन जलील। खुदा तो वो है, 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 खुदा तो वो है। वही जुड़ेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब रहा है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही जुड़ेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब रहा है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी है जलवों का कारवां है। जो दिन के पर्दों पे शक्ति छा दे, जो रात को में सहर बना दे, दमे की रातों बहार कर दे, शजर को फिर मातबर बना दे। वो साके हसरत गुलाब कर दे, महकते फिर लाजवाब कर दे। जो दिल के सहरा को सब्र कर दे, जो रो पड़ूं तो वो हर बना दे। जो मेरी जागे करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा है। वही जुड़ेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब रहा है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जो बर्फ सीनों में जिंदगी को जो सब्ज पत्ती खिला रहा है। जो रेगिजारों की धूप में भी कई चरिंदे जिला रहा है। हाँ किसरत से ये परिंदे अदाए पल से उड़ा रहा है। मैदान गर्दिश की हद बनाकर निज़ाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है, कि दो जहां का वो मीज़ां है। वही जुड़ेगा ये सर हमारा
کے دم سے یہ سب رہا ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے۔ تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے۔ یہ جلتے بجھتے یہ جل ملاتے، قسم خدا کی خدا نہیں ہے۔ یہ سرسراتے یہ ٹمٹماتے، قسم خدا کی خدا نہیں ہے۔ عروج والے زوال والے، یہ نیل والے نجال والے، رہے فنا میں یہ آتے جاتے، قسم خدا کی خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے ازل سے جاری، بقا ہے جس کو وہ جاویداں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب رہا ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے، وہی جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب رہا ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب نظم پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے۔ حضرات سامعین، اب میں ہمارے مدرسے کے اندر اول ڈاؤن نمبر پر پاس ہونے والے طلبہ کا نام پیش کرتا ہوں۔ حافظ محبوب عباد صاحب کی کلاس میں، حفظ کلاس میں اول نمبر پر آنے والا محمد حافظ امتیاز متھانی، جو ابھی بچہ نظم پڑھ کے گیا۔ نمبر 2 پر آنے والا ارشاد عبدالرشید ملک۔ ایک مسلمان بھائی کی جانب سے حافظ محمد متھانی کو مزید انعام 100 روپے دیے گئے ہیں، وہ آئے اور 100 روپے وصول کر لیں۔ مولانا سلطان صاحب کی کلاس 21 سے 30 کی ہے، اس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والا احمد اسماعیل جساد، ڈاؤن نمبر پر کامیاب ہونے والے حذیف علی پٹھان۔ حافظ اسماعیل گوری صاحب کی 21 سے 30 کی جماعت ہے، اس میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والی طالبات مریم حافظ جنید جساد عالیہ، دوسرے نمبر پر عالیہ ذاکر ملک۔ سعید انگیرہ 11 سے 20 کی جماعت ہے، اس میں اول نمبر پر ساحل حسین شیخ اور دوسرے نمبر پر مبین حافظ امتیاز مٹھانی۔ حافظ یوسف راوت صاحب کی کلاس پارہ 4 سے 10 کی جماعت ہے، اول نمبر پر اسماعیل افضل عمر اور دوسرے نمبر پر عمار حافظ جنید جساد۔ مولانا جاوید صاحب کی کلاس 1 سے 3 پارہ 1 سے 3 کی جماعت ہے، اول نمبر پر ابرار صدیق آجی، دوسرے نمبر پر زویا اسماعیل پانڈور۔ مولانا محمد بوباد صاحب کی پارے ہم کی جماعت ہے، اول نمبر پر کامیاب ہونے والا شعیب داؤد پٹیل، دوسرے نمبر پر ماریہ افضل عمر۔ حافظ امتیاز مٹھانی صاحب، ان کی پارے ہم کی جماعت ہے، فلاح مسجد کے اندر پڑھاتے ہیں، اول نمبر پر آمینہ حنیف پٹھان، دوسرے نمبر پر ایان رفیق شیخ۔ حافظ محمد پانڈو GIPCL کی کلاس ہے 21 سے 30 اور پارہ 5 سے 10، اس میں اول نمبر پر فاطمہ ڈاکٹر ابراہیم پانڈور محمد، دوسرے نمبر پر محمد اسلم مہمان۔ حافظ محمد پانڈور صاحب نورانی قاعدہ کی جماعت کے اندر اول نمبر پر سہیل حنیف شاہ سمیہ حافظ محمد پانڈور، اور ان کی دوسری جماعت تختی کی ہے حروف سناسی، اس میں اول نمبر پر آمینہ حافظ جنید جساد، دوسرے نمبر پر محمد سلیم اقبال سید۔ حافظ بصیر پٹھان صاحب فلاح مسجد پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ، ان کی جماعت میں اول نمبر پر حسن احمد پٹھان، دوسرے نمبر پر اقصا افضل شیخ۔ اور حافظ حدیف جیوائی صاحب تختی پڑھاتے ہیں، وہ بھی فلاح مسجد میں، ان میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والا طالب علم حسن آصف پٹھان، دوسرے نمبر پر فیض رئیس شیخ۔ اسی طرح عالمہ مریم بہن مٹھانی جو گرلس میں پڑھاتی ہے، پارہ 21 سے 30 کی جماعت اور 5 سے 10 کی جماعت، اس میں
अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाली तालिबात जो है सानिया इम्तियाज पठान, दूसरे नंबर पर साइना जुम्मा बाई। मसाल हजरात सामीन, अब हमारे जलसे की प्रोग्राम की कार्रवाई करीबुल खत्म है। सदर इजलास की खिताबत से कब्ल मैं सदर साहब मदरसा हाजा जनाब हाफिज मोहम्मद महबूब मुबाद साहब को दरखास्त करता हूँ कि मदरसे का सालाना रिपोर्ट पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मदरसे का 117वां सालाना जलसा ख़त्म करके नए साल में कदम रख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तालीमी और तरबियती एतबार से तरक्की की तरफ रवा दवा है। अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि रब्बे करीम इस मदरसे के बानी और बवानी को जज़ाए खैर अता फरमाकर जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे और मदरसा हाजा को नज़रबद से हिफाजत फरमावे, आमीन। हज़रात, अल्लाह के फज़ल करम से फिलहाल मदरसे में तलबा और तालिबात की तादाद 235 है और 12 असातिज़ाए किराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें दर्जा हिफ्ज़ की भी एक क्लास है, जिसमें गांव के और हॉस्टल के बच्चे ज़ेर तालीम है। इस साल 38 तलबा और तालिबात ने नाज़रा कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। इम्तिहानात, हर साल की तरह इस साल भी 2 इम्तिहान हुए, शशमाही और सालाना। शशमाही इम्तिहान के लिए अतराफ से मकातिब के उलमा हजरात तशरीफ लाए और सालाना इम्तिहान के लिए दारुल उलूम कंधारिया के मुमतहिन हजरात तशरीफ लाए थे। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और मकतब की तालीम कैसे मजबूत हो हमें मुफीद मशवरे से मालामाल किया। अल्लाह ताला उन तमाम मुहसिनों को जज़ाए खैर अता फरमावे, आमीन। इनामात, हर साल की तरह इस साल भी हर तालिब इल्म को उमूमी इनाम दिया गया। मजीद कराइए कि हमारे मदरसे में अव्वल दौम नंबर पर पास होने वाले बच्चों को खुसूसी इनाम दिया गया और फुल हाजिरी वालों को भी इनाम से सरफराज किया गया और ये इनाम गाँव वालों ने दिल खुल कर ताउन फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। रब्बे करीम तमाम गाँव वालों और अहले खैर हजरात को बेहतरीन बदला अता फरमावे, आमीन। इसी तरह हम हमारे मदरसे के रूही रवा और नाज़िम आला मौलाना अब्दुल समद जसाद साहब को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने आधी तनख्वाह की फिक्र फरमा रखी है। अल्लाह ताला उनकी जान और माल, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमावे और रोजी में बरकत अता फरमावे और उनके तमाम रहमीन की बाल बाल करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे, आमीन। वफ़ियात, इस साल इस गाँव के बाशिंदे और मदरसा हाजा के बाज़ी मुदर्रिस कादी सलीमान घीवाला और महसिन इब्राहिम रावत इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों मरहूमीन के लिए मदरसे में कुरान ख़ानी करके इन दोनों मरहूमीन के लिए और पूरी उम्मत के मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मरहूमीन की बाल बाल करवट करवट मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमावे और उनके दर्जात बुलंद फरमावे, आमीन। इसी तरह इस मौके पर हमारे गाँव के लोगों ने जो मुल्क और बैरून मुल्क में रहते हैं, इन तमाम लोगों ने इस मदरसा का भरपूर ताउन और मदद फरमाई और मदरसे की तमाम ज़रूरियात को पूरी की और मदरसे का बक़िया काम जारी और सारी है। इसी तरह गाँव वालों ने ताउन फरमा कर लब्बैक कहकर हमारे जलसे को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश की और हमारे तमाम मुदर्रिसीन हज़रात ने पूरी कोशिश की और पूरा साल जिम्मेदारी के साथ ख़त्म किया। बंदा तमाम गाँव वालों का, तमाम असातिज़ाए किराम का, इसी तरह जलसा में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह ताला तमाम हजरात को दुरो जहां में जज़ाए खैर अता फरमावे और दीनदारी का सिलसिला जारी व सारी फरमावे, आमीन। कलमा तशक्कुर। मुकर्रमी सामीन, फलिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक। सबसे पहले उस ज़ात वहदहु ला शरीक लहू का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने हमारे जलसे को इख्तिताम पर पहुँचाया। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाकर तरक्कियात से नवाजे और नजात का जरिया बनाए, आमीन। हजरत मन लम यशकुरिल्लाह लम यशकुरिल्लाह का मिसदाक न बनते हुए मजमूई तौर पर तमाम गाँव वालों का, जलसा में शरीक होने वाले तमाम अहबाब का और तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इसी तरह स्टेज पर जलवा अफरोज मेहमान खुसूसी मेरी मुराद हजरत अक़दस अलहाज मौलाना कारी रशीद अहमद अजमेरी साहब दावत बरकातहुम का मदरसा वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी बेइंतहा मशगूलियत के बावजूद
ہماری اقدار دعوت کو قبول فرما کر لبیک کہہ کر تشریف آوری فرما کر ہمارے جلسے کو رونق بخشی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ دارین میں ترقیات سے مالا مال فرما کر اور حضرت کے علم و عمل میں ترقی نصیب فرما کر عافیت کے ساتھ حضرت کے مواعظ حسنہ سے امت مالا مال ہوتی رہے آمین فجزاکم اللہ احسن الجزاء ماشاء معزز سامعین، اب میں صدر اجلاس کے خطاب سے پہلے ایک طالب علم کو برکت اور رحمت کے طور پر قرات پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں تاکہ ہمارے جلسے کی ابتدا اور انتہا کلام پاک سے ہو جائے۔ اس کا نام ہے اسماعیل افضل عمر، وہ آئے اسٹیج پر اور قرات سنائے۔ والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم ماشاء اللہ انعام لے لے۔ حضرات گرامی، بلا کسی تاخیر کے اس شخصیت گرامی کو دعوت خطاب کرنے جا رہا ہوں جن کا مشغلہ قدم قدم پر علم کا چراغ روشن کرنا ہے۔ میری مراد عالم کبیر متکلم وقت جناب حضرت مولانا الحاج قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث و تفسیر دارالعلوم رانڈے کی ذات گرامی ہے۔ حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حاضرین جلسہ کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائے۔